Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter Honeysuckle's book का second, that is how the dog found himself a new master. As the title also defines it कि किस तरीके से dog जो है वो अपने लिए एक master की खोज करता है. So, firstly we found that the dog's life became sick and tired. Why so? Because he was wandering by himself, he was free at that time, and he wants a master. So, he wants a master none other than the strongest on the entire earth. So, first he came to know about the wolf. He said to the wolf that, "Would you be my master? Because you are very strong." So the wolf said, yeah, sure, very not. He accepted his proposal, and they both were walking together, and the wolf heard the bear's uh, heard the bear's voice. So he became afraid and went off the way. So the dog said that you are afraid of the bear, it means the bear is stronger than you, so I will say goodbye to you. And he goes to the bear and said, will you be my master? The bear accepted the proposal, and one day when they were hunting, he said that I will kill a cow, and then we can both eat a fill. The dog was happy at that time because he was the strongest. So he said, okay. They walked on, and soon they saw a herd of cows, and the cows was running in a panic in all directions. The dog didn't get the reason. Then the bear said that we should go from here, as the trouble or the danger is coming towards us. The dog was very much in a confusion because he knows that the bear is the strongest thing on the earth. So he said, why are you afraid? He said that the lion is coming towards us. He is the strongest beast on earth. इतना सुनते ही डॉग कहता है, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ. और इस तरीके से वो लायन के पास में भी जाता है और उसे जो है वो अपना मास्टर बना लेता है. बहुत अच्छे से दिन गुजरते जाते हैं, और एक दिन लायन जो है उसको वो स्मेल करता है अपनी वे में, किसकी? मैन की. और वो लाइन जो है वो कहता है, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, कि हमें या तो यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे. Oh, well then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर वो लायन से भी गुड बाय कह देता है. क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसा मास्टर चाहिए ही नहीं जो किसी से अफ्रेड हो, जो किसी से डरे. उसे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. सो नेक्स्ट देखते हैं. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन. और फिर जो है लायन को गुड बाय कहने के बाद में जो डॉग है वो मैन को ज्वाइन करने के लिए जाता है. एंड ही स्टेड विद हिम. और फिर उसी के साथ में रहना शुरू कर देता है. एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और बहुत ही लॉयल्टी के साथ में, बहुत ही वफादारी के साथ में उसको सर्व करता है. दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो. ये बहुत बहुत पहले जो है हुआ था. बट to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. लेकिन आज भी this day the dog is man's most loyal servant. जो dog है वो man का most loyal servant है, और ये जो है जो dog है वो man के अलावा किसी और को अपना master मानता ही नहीं है. So discuss these questions in pairs before you write the answers. इसके जो हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर पे हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल फॉरवर्ड टू द
बी सेक्शन, दैट इज अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो। नीचे जो है वो हमारे इस चैप्टर की एक समरी दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट। हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि हमारी स्टोरी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इट टेकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। और हमें इस फिल करने के लिए क्या करना है, ऊपर कुछ फ्रेजेस दी गई हैं जो कि हमें डिमांड के अकॉर्डिंग फिल करनी है। लाइक दिस इज द स्टोरी ऑफ। अब ये पूरी स्टोरी किसके बारे में है, डॉग के बारे में है, वुल्फ के बारे में है, लायन के बारे में है, बियर के बारे में है। तो डॉग के बारे में है पूरी स्टोरी, तो वी विल फिल इट, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग। देन हु यूज्ड टू बी एंड देन डैश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो कि अपना खुद का मालिक हुआ करता था। द रेस्ट पार्ट यू आर going to fill it and write it in your notebook, okay, according to the appropriate, जहाँ पर भी ब्लैंक हो वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट फ्रेज आपको लगे वो फिल करके ये आपको समरी रेडी करनी है। देन वर्किंग विद द लैंग्वेज में आते हैं। ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट अ लार्ज नंबर ऑफ। नंबर ऑफ किस चीज़ का है, एग्जाम्पल के दिया है, अ हर्ड ऑफ काउज रेफर टू मैनी काउज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कलेक्टिव नाउन में ऑलरेडी पढ़ी है, तो आपको इन चीज़ों को फिल करना है। जैसे कि ऑफ फ्लावर्स है, फ्लावर्स का क्या होता है, बंडल होता है, बंच होता है या फ्लॉक होता है। ऑब्वियसली बंच होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ बंच ऑफ फ्लावर्स। इसी तरीके से जो कैटल हैं, कैटल का क्या होता है, हर्ड होता है, तो अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे कलेक्टिव नाउन जो हैं वो फिल करने हैं। देन मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग एन ई डबल एस और आई टी वाई। इट मीन्स हमें जो है क्या करना है, जो हमारे पास में वर्ड्स दिए गए हैं उनके बाद में यानी कि सफिक्स लगा करके हमें नाउन बनाना है। फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड जस्ट टी वाई और वाई, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हमें केवल टी वाई और वाई को ऐड करने के बाद में भी नाउन बन जाएगा। जैसे ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी में वाई लगा देंगे, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टी बन जाएगा वाई लगाते ही, तो हमारा ये नाउन हो गया ईमानदारी। सेकेंड वन की हम बात करें तो काइंड है, तो काइंड का हमारा बन गया काइंडनेस। तो इस तरीके से आपको ये 12 दिए गए हैं जो कि नाउन जो है वो आपको बनाने हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्सरसाइजेज दैट फॉलो, देन कंप्लीट द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स गिवन ऑन द फेसिंग पेज। इसमें आपको जो फर्स्ट है, find the opposite of these words in the text above। 5 words लिए गए हैं और आपको यहाँ पर इनके अपोजिट ढूंढने हैं, ये जो हमारा पैसेज दिया गया है उसमें से। ठीक है, सो आप पहले पैसेज लिख सकते हैं और उसके बाद में क्लियरली ढूंढ सकते हैं अगर आपको स्क्रीन से प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, सो सडनली का हो जाएगा ग्रेजुअली, और बाकी का आपको जो है इसमें से फाइंड करना है एट योर ओन। देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो है आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। डॉग्स वर द डैश एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस, द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस आर, ये जो है think and name some other animals, if you need my help you can message or call me for this but you have to do it your own। देन हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, why did the dog feel the need of a master? डॉग जो है उसे एक मास्टर की नीड क्यों फील हुई? The dog felt a need for a master because he was tired of wandering about all by himself and being scared of those who were stronger than him। वो अकेले घूमता घूमता थक चुका था और दूसरा ये रीज़न था कि वो उन लोगों से डरता था जो कि उससे ज़्यादा पावरफुल थे। सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द एंटायर अर्थ। इसीलिए उसे एक ऐसे मास्टर की तलाश थी जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु डिड
ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, किसको उसने अपने मास्टर के रूप में सबसे पहले चूज किया? वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और फिर उसे छोड़ क्यों दिया? ही डिसाइडेड ही चूज द वुल्फ एज हिज फर्स्ट मास्टर. He left the wolf as his master because the wolf was scared of the bear. छोड़ने का रीज़न है कि वो किससे डर गई थी? बियर से. और जो डॉग है, द डॉग वॉन्ट टू सर्व अ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, सो ही लेफ्ट द वुल्फ. और डॉग को एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो कि सबसे ज़्यादा क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए उसने वुल्फ को छोड़ दिया. Who did he choose next? वुल्फ के बाद में उसने किसको चूज किया? He chose the bear as his master. बियर को चूज किया. Why did he serve the lion for a long time? बहुत लंबे समय तक उसने लॉन्ग टाइम तक उसने जो है वो लायन को सर्व कैसे क्यों किया? He served the lion for a long time because he had no complaints. क्योंकि उसे लॉयन से कोई कंप्लेंट्स ही नहीं थी, वो तो पूरे फॉरेस्ट का राजा था, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ही वॉज सेफ एज द लायन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग. वो लायन के साथ में बहुत ज़्यादा सेफ था क्योंकि वो पूरे फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और कोई भी जो है वो उसे परेशान या अफ्रेड नहीं कर सकता था. Who did he finally choose as his master and why? लास्ट में उसने अपने मास्टर के तौर पर किसे चुना? So he finally chose man as his master. This is because even the lion, who was the fiercest beast, was scared of humans. डॉग ने जो है मैन को अपना मास्टर चुना क्योंकि लॉयन जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था वो भी किससे डरता था? ह्यूमन से. दिस कन्विंस द डॉग दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. और इसी चीज़ ने क्या किया? कन्विंस कर लिया कि डॉग जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. तो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आज हमने जो अपना सेकंड चैप्टर है जो कि कौन सा था, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, वो कंप्लीट किया है. और इस चैप्टर के बारे में जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं आप क्लियर आउट कर सकते हैं. दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.